સૌથી પહેલા આપણે થોડીક લાઇટર નોટથી શરૂઆત કરીએ તો COVID-19 ના અત્યાર સુધીમાં લગભગ 23,000 વેબિનાર થઈ ગયા છે આખી દુનિયામાં, અને એનો ડબલિંગ રેટ છે એ લગભગ 20 દિવસનો છે. એટલે જો આપણે એક્સપેક્ટ કરીએ તો ડિસેમ્બર સુધીમાં લગભગ 5 મિલિયન જેવા વેબિનાર કોરોના ઉપર થઈ શકશે. આપણો એક સંનિષ્ઠ પ્રયાસ ખાલી સિમ્પલ કોરોના વિશે આપ સૌને માહિતી આપવાનો છે. એટલે વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ વેરી પોઝિટિવ નોટ કે મહેશ જૈન અને એમના મિસિસ સમતા જૈન જે કરીને આવ્યા છે એમને હું ઇન્વાઇટ કરું છું. એટલે દે વિલ એક્સપિરિયન્સ ધેર સક્સેસ સ્ટોરી. પછી આપણે થોડુંક ડિસ્કશન લેશું, એટલે તમે થોડા લાઇટ મૂડમાં આવી જાઓ. આઈ એમ ઇન્વાઇટિંગ મહેશ જૈન એન્ડ સમતા. નમસ્કાર, થેન્ક યુ રાજપરા સાહેબ. સૌથી પહેલા પ્રકાશભાઈ પટેલ અમારા પ્રેસિડેન્ટનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આ એક કોરોના અવેરનેસ વિશે તમે વેબિનાર યોજો, જે લોકોમાં ખૂબ જરૂર છે જાણવા માટે હમણાં કે કોરોનાની મહામારીનું મિસકન્સેપ્શન બહુ છે લોકોમાં. પહેલી વાત કરું તો સૌથી પહેલા હું ધન્યવાદ કરીશ મારા ડોક્ટર રેણુકાબેન, મારા પેરેન્ટ્સ, ખાસ મારી મધર, જેણે મને આખો બધા પરિવારને સંભાળીને રાખ્યો. ટોટલ આ કોરોનાના આટલા દિવસ અમે ક્વોરન્ટાઇન રહ્યો, એમાં ખાસ માતા પિતાનો આભાર. એમનો જ આશીર્વાદ, ફેમિલીના આશીર્વાદ, મિત્રોના આશીર્વાદથી આજે બધું કોરોના ક્યોર થઈને હું સ્વસ્થ રીતે આપની સમક્ષ બેઠો છું અને વાત કરી રહ્યો છું. કોરોના 2 મહિનાથી આ નામ ચાલી રહ્યું છે, કોરોના કોરોના. ઘણું બધું સાંભળી લીધું, ઘણું બધું જોયું, હું એ સાંભળતો હતો. પણ જ્યારે હું ઇન્ફેક્ટ થયો ને મારી જે સાથે જે એક્સપિરિયન્સ થયું, તો એમાં ઘણા બધા ચેન્જીસ આવ્યા મારા વિચારમાં કે આમાં આ એક નોર્મલ વાયરસ જેવું જ છે. હું તમારી સમક્ષ એ જ એક્સપિરિયન્સ આજે શેર કરવા માંગુ છું. મિત્રો, 4th મે 2020 મને પહેલી વાર તાવ આવ્યો સવારે 10 વાગે. તો મેં તરત જ ડોક્ટરને ફોન કર્યો, રેણુકાબેનને. તો એમણે કીધું કે તરત તમે ક્વોરન્ટાઇન થઈ જાઓ, આ સમય ખરાબ છે, આ નોર્મલ તાવ પણ હોઈ શકે કે કોવિડ પણ હોઈ શકે. તમે એમ જ માનો કે તમને કોવિડ થયું છે, એ રીતે આપણે ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરીએ. એ જ દિવસે હું ક્વોરન્ટાઇન થઈ ગયો. ગરમ પાણી પીવાનું ચાલુ કર્યું, ઉકાળા પીવાનું ચાલુ કર્યું, સવાર સાંજ ઇમ્યુન પાવર વધે એવી વસ્તુ બધું ચાલુ કરી. લીંબુ પાણી પીવાનું ચાલુ કર્યું, દૂધ અને હળદર સાથે 2 ટાઈમ દૂધ પીવાનું ચાલુ કર્યું. અને મારો ટેમ્પરેચરનો રેકોર્ડ મેડમને, ડોક્ટર મેડમનું આપતો રહેતો. ત્રીજા દિવસે મારી વાઈફને પણ તાવ આવ્યો, તો ડોક્ટરે એને પણ એકવાર ક્વોરન્ટાઇન કરી કાઢી. એમને તો ડાઉટ હતો જ કે મહેશને તાવ આવે છે તો ક્ષમતાને તાવ આવશે જ, કોરોનામાં ઇફેક્ટ આવવાની, કે ડરવાની કઈ જરૂર નથી, તમે પણ ક્વોરન્ટાઇન થઈ જાઓ. એટલે ક્ષમતા પણ ક્વોરન્ટાઇન થઈ ગઈ. પછી મેં એએમસી કોર્પોરેશન ડિપાર્ટમેન્ટમાં ફોન કર્યો કે સાહેબ મને તાવ આવે છે. કે ઓકે, કે તમને ગળામાં દુખે છે કે ના, કે તમને કઈ શ્વાસમાં તકલીફ કે ના, કે માથું દુખે? મેં કઈ જ નથી થયું સાહેબ, ખાલી તાવ આવે. તો કે વાંધો નહીં, ખાલી તાવ આવે તો ટેન્શન ના લો, તમે ઘરે ક્વોરન્ટાઇન રહો, દવા લો, ઓકે થઈ જશું. ઓકે, તો એ રીતે હું માઇન્ડથી થોડો ફ્રી થઈ ગયો કે કોરોનામાં તાવ આવે તો કંઈક મોટી વાત નથી, નોર્મલ વાયરસની જેમ જ છે. હું મારી ટ્રીટમેન્ટ અમારા હોમિયોપેથી ડોક્ટર રેણુકાબેનની લેતો રહ્યો, એમની કન્સલ્ટન્સીમાં. એમને મને કીધું આ દવા લે, હોમિયોપેથી આપી, એલોપેથી આપી, ને રેગ્યુલર ઇમ્યુન પાવર માટે જે વસ્તુ લેતો હતો, ગળામાં ગાર્ગલિંગ કરો ગરમ પાણીનું, સ્ટીમ લીધું, સ્ટીમ લો, અને પોઝિટિવ રહો તમે. ઓકે. અને પછી 7 દિવસ થઈ ગયા, મને તાવ બંધ ના થયું. એટલે મેં કીધું હવે આ શું, આટલા દિવસથી હું મારા ભાઈ ક્વોરન્ટાઇન બેઠા છે, આખો લોડ મમ્મી પર છે, અમે કોરોના છે કે નહીં એ જ ખબર નથી ને અમે વગર કામ ક્વોરન્ટાઇન થઈને બેઠા છે. તો મેં ફરી કોર્પોરેશનમાં ફોન કર્યો. તો એમણે કીધું શું થયું? મેં કે સાહેબ મને તાવ આવે છે. તો કે ગળું દુખે છે? મેં કે ના. માથામાં દુખે છે? શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે? મેં કે ના. તો કે ટેન્શન ના લો, થઈ જશે. ઓકે, તો ત્યાં એક થોડીક રાહત રહી કે ચલો તાવમાં એનો કંઈ થતું નથી, એક નોર્મલ વાયરસની જેમ જ છે. તોય છતાં મેં પ્રાઇવેટમાં જઈને ટેસ્ટ કરાવ્યો કે ખબર પડે કે અમારે કેટલા દિવસ ક્વોરન્ટાઇન રહેવું છે. વગર કામ ક્વોરન્ટાઇન નથી બેઠા ને અમે. એ દિવસે પ્રાઇવેટમાં સુપ્રાટેક લેબોરેટરીમાં મેં ટેસ્ટ કરાયો અને મારો ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો. 1 સેકન્ડ માટે ખ્યાલ આવ્યો અરે યાર મને કોરોના આવી ગયું. પણ પછી મેં વિચાર્યું કે આટલા દિવસથી કોર્પોરેશનમાં ફોન કરું છું તો એમણે તો બહુ જ લાઇટલી લીધું છે કે તાવ આવે છે તો સાહેબ ચિંતા ના કરો, કઈ વાંધો નથી. ગળું દુખે તો એઝિથ્રોમાઇસિન લઈ લેજો, તાવ આવે છે તો ડોલો 650 લઈ લો. આમાં બીજું કઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી.
તો હું થોડો સ્ટ્રેસ ફ્રી થઈ ગયો એ બાબતથી. પણ એ રીતે જ ગોળી જે ડોલો લેતો હતો, તાવ આવતો હતો તો મને ડોલો લેતો હતો. સ્ટાર્ટિંગમાં ફર્સ્ટ ડે થી લઈને 3 દિવસ સુધી 3 ડોલો લેવી પડતી હતી. ધીમે ધીમે 2 ડોલો પર આવ્યો. 7મા દિવસે ટેસ્ટ કરાયો, એના પછી 8મા દિવસે મને તાવ 16 કલાકે આવ્યો, 9મા દિવસે 24 કલાકે આવ્યો અને 10મા દિવસથી તાવ બંધ થઈ ગયો. કોર્પોરેશનમાં હું ફોન કર્યો તો એમણે કીધું જ્યારે પણ તમને તાવ બંધ થાય 3 દિવસ થાય ને પછીના 7 દિવસ થાય એટલે તમે કોરોના ફ્રી થઈ જશો, એમાં પછી ટેસ્ટની કોઈ જરૂર નથી. એટલે ટૂંકમાં આ વાયરસ નોર્મલ છે, બીજા બધા વાયરસ જેવું જ છે. તમે ઇમ્યુન પાવર વધારવામાં ધ્યાન રાખો, ડોક્ટરના સતત સંપર્કમાં રહો, જે પણ તમને પ્રોબ્લેમ થાય એને તમે કહેતા રહો. ઘરે ક્વોરન્ટાઇન થઈને આમાં ઈલાજ થઈ શક્ય છે. જ્યારે મેં કોર્પોરેશનમાં ફોન કર્યો કે ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે તો એમણે કીધું કે શું કરવું છે. મેં કે સાહેબ હું તો ઘરે હોમ ક્વોરન્ટાઇન જ છું ઓલરેડી. તો કે બસ તો કઈ વાંધો નહીં, તમે ઘરે તમારે એક હોમ ક્વોરન્ટાઇન માટે એક અલગ રૂમ વિથ એટેચ બાથરૂમ હોવું જરૂરી છે એમના હિસાબે. તો તમે હોમ ક્વોરન્ટાઇન થઈને આરામથી તમારું કોરોના ક્યોર કરી શકો છો. આ રીતે મેં મારું પોઝિટિવ રહીને શાંતિથી મેકઅપ માઇન્ડ કરીને કે મને કંઈ જ થયું નથી, નોર્મલ તાવ છે, નોર્મલ વાયરસની જેમ આ ઠીક થઈ જશે, નોર્મલ વાયરસની જેમ આ પતી જશે દવા લઈને. અને ફેમિલીનો સપોર્ટ છે, ઉપરવાળાનો આશીર્વાદ છે, ડોક્ટર સાહેબ સાથે છે, મિત્રોનો આશીર્વાદ છે, ગુડ વિશિસ છે બધાના, એનાથી બધું આપણે બહુ સારું રહ્યું, બધું શાંતિથી પતી ગયું. જનરલી કોરોના 14 ડેઝની મેક્સિમમ પ્રોસિજર હોય છે. જ્યારે પણ થાય આમાં થંબ રૂલ છે કે આપને આ સમયમાં ક્યારે પણ તાવ આવે કે ખાંસી આવે, કંઈ પણ આપણને લાગે તો આપ પહેલા ડોક્ટરને કોલ કરીને ઘરમાં ક્વોરન્ટાઇન થઈ જાઓ. ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી થંબ રૂલ કોરોનામાં. તમે એકવાર ક્વોરન્ટાઇન થઈ જાઓ તો આગળ ફેલાય નહીં. એવું કહેવામાં આવે છે કે એકવાર ઘરમાં આવે છે તો લગભગ આ કોરોના બધાને આવે જ છે. એટલે જે પણ હસબન્ડ હોય તો વાઈફને થાય, વાઈફ હોય તો હસબન્ડને થાય. એટલે ખાસ ક્વોરન્ટાઇન થઈ જવું જરૂર કે ઘરમાં વડીલ હોય, મધર ફાધર હોય, છોકરા હોય. અને એક અમારા ડોક્ટર સાહેબે કીધું કે છોકરાઓ માટે તમે ટેન્શન લેતા નહીં, એમનું ઇમ્યુન બહુ સારું હોય છે, એમને આના કોરોનાનો બહુ ઇફેક્ટ પડતી નથી. હોય તો નોર્મલ વાયરસ તરીકે એમને પતી જાય છે, ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. જે પણ ટેન્શન છે વડીલો માટે કીધું છે, 65+ એના માટે કહે છે કે એમને કંઈ ને કંઈક બીમારી જોડો હોય છે તો થોડુંક ટાઈમ લઈ શકે છે. બાકી 80 યર્સનો માણસ આમાં ક્યોર થાય છે. ને ઇન્ડિયાનો ક્યોરનો રેશિયો બહુ સારો છે, જે આપણે હાઇલાઇટ હંમેશા કેસીસ વધ્યા અને ડેથ પર જ કરીએ છીએ મીડિયા, પણ કેટલા કેસ ક્યોર થાય છે કદાચ એની પર હાઇલાઇટ કરે તો ઘણું મેન્ટલી ફ્રી બધા રિલીફ થઈ શકે છે. હવે આજે હું ક્યોર છું, બહુ મારા રૂમથી બહાર પણ આવી ગયો છું, આરામથી હરી ફરી શકું છું. હવે મારી સાથે 2 દિવસ પછી મારી વાઈફને સંતાન તાવ આવે તો હું સમતાને કહીશ કે એ એનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરે આપની સાથે. થેન્ક યુ. तो जी अनम्यूट करना आपको. यस. जिनेंद्र, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रकाश भाई को धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने कोरोना अवेयरनेस के लिए वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। जैसा कि अभी ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, उसमें मैं भी कोरोना से इन्फेक्टेड थी। इस दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शेयर करने से पहले यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं उपस्थित है, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जिंदगी में हमें साक्षात भगवान मिले हुए हैं, एक पेरेंट्स के रूप में तो दूसरे डॉक्टर्स के रूप में। जब इन दोनों का सपोर्ट हमारे साथ हो तो कोई भी मुसीबत बड़ी आसानी से हम मिटा सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर कोई भी इलाज करता है तो सबसे पहले मानसिक तौर पे अपने को मजबूत करता है। इसी बात पे मैं अपने डॉक्टर रेणुका जैन के बारे में बताना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे हर कदम कदम पे मेरा हमेशा मानसिक तौर पे मुझे हमेशा मजबूत किया और मुझे हमेशा सपोर्ट किया। कभी भी कुछ भी मैं आधी रात को भी उन्हें कॉल करूं तो वो हमेशा मुझे इतने प्यार से समझाती थी कि मेरे आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाती थी। अब मैं जैसे कहना चाहूंगी कि आज चाहे डॉक्टर होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, हमें उनमें ट्रस्ट होना चाहिए।
बात कहना चाहूँगी कि स्वास्थ्य लाभ में हमेशा दवाई ही ज़रूरी नहीं होती है। स्वास्थ्य लाभ में हमेशा दवाई ही ज़रूरी नहीं होती है, इसके लिए विश्वास ज़रूरी होता है। विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें उनमें ट्रस्ट है, तो हमारी बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। जैसे कि मुझे डॉक्टर रेणुका में ट्रस्ट है, इसलिए मेरी हमेशा मेरी पूरी बीमारी ऐसे ही फटाफट खत्म हो जाती है। आज जैसे कि कोरोना में मेरे को जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे कि महेश को हुआ, उसके 3 दिन बाद जब मुझे कोरोना हुआ, मुझे फ़ीवर आया, मैं भी क्वारंटाइन हो गई। अब 3 दिन बाद मेरा फ़ीवर मेरा फ़ीवर 100 के अंडर आ गया और रात को मेरा नॉर्मल टेम्परेचर रहने लगा। 5 डेज़ हो गए, उसके बाद मैंने जब डॉक्टर ने बोला कि महेश का 7 डेज़ हो चुके हैं और तुम्हें 5 डेज़ भी होने आ गए हैं, तो एक बार टेस्टिंग करवा लो, मेबी तुम्हारा शायद नॉर्मल टेम्परेचर है आ गया है तो नॉर्मल वायरल हो सकता है। लेकिन जब मैंने मेरी कुछ गलतियाँ रही है, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि सबसे पहली मेरी गलती ये थी कि जब मुझे कोरोना हुआ, तब नॉर्मली मेरी जो बॉडी है, वो वार्म बॉडी है। मैं रूटीन डेज़ में भी ज़्यादा हॉट चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। मतलब उनका सेवन मैं इवन विंटर सीज़न में भी मैं ज़्यादा हॉट जिनसे मेरे को हीट मिलती है बॉडी में, वो मैं उनका सेवन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही कोरोना हुआ, तो मैंने सब कुछ चालू कर दिया। डर था कि कहीं बढ़ ना जाए। दिन में 3 टाइम मैंने हल्दी लेना चालू कर दिया। दिन में 2 टाइम मैं काढ़ा पी रही थी, जिसमें भी सौंठ है सब कुछ गरम चीज़ें ही आती है, वो भी मैंने पीना चालू कर दिया। उसके बाद मैंने पूरे दिन भर में गर्म पानी पीना चालू किया, क्योंकि मुझे थोड़ी कफ की शिकायत है, तो मुझे डर था कि उस वजह से शायद मेरी प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट ना हो जाए। और 5 दिन तक मैंने अपनी बॉडी को बहुत ही पॉज़िटिव वे से मैंने वाइब्रेट किया और उस वजह से मेरे को ऐसा लगा कि मैं बहुत जल्दी क्योर हो रही हूँ। 3 ही दिन में जब मेरा फ़ीवर डाउन आ गया और जब 2 दिन तक मुझे फीलिंग्स भी अच्छी आ रही थी। लेकिन ये जो गरम चीज़ें खाने से मेरी बॉडी इतनी वार्म हो गई अंदर से कि मुझे लग रहा था कि वार्म बॉडी हो गई है। आफ्टर 5 डेज़ बाद जब महेश का रिज़ल्ट आया, यहाँ मेरी दूसरी गलती। जैसे ही महेश का रिज़ल्ट आया और जब मुझे उसने बताया कि मुझे कोरोना हुआ, उस रात मेरे को बहुत टेंशन हो गई कि शायद कहीं मेरा भी कोरोना ना आ जाए। उस टेंशन की वज़ह से मैं इतनी घबरा गई, मम्मी का क्या होगा, विहान का क्या होगा, ऑल थिंग्स मतलब दिमाग में घूम रही थी। रात भर मैं सोई नहीं कि मॉर्निंग में मुझे मम्मी को बताना है और इस चक्कर में मैंने अपने अंदर पूरी रात चिंता कर टेंशन कर के मेरी पूरी बॉडी जो है वो पूरी शिवर करने लग गई और उस शिवर में मेरी हार्ट बीट भी फास्ट हो गई। वो जो टाइम था वो बहुत अजीब-सा एक टाइम लगा मुझे कि ये सब क्या हो रहा है? तब मैंने डॉक्टर रेणुका को 3 बजे रात को कॉल किया और डॉक्टर रेणुका ने उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे समझाया। आधी रात को भी उन्होंने मेरा कॉल उठाया, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सुनी और उन्होंने बताया टेंशन नहीं कर, कुछ नहीं होगा, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं कर और कूल डाउन। और उनका ये जो पॉजिटिव वे था, वो उसने मुझे एनर्जी दी और एकदम ऐसा लगा कि मैं क्या कर रही हूँ? मैंने ये क्या किया? मेरे चिंता करने से क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, उल्टा मैंने अपने लिए कुछ गलत कर दिया है। मेरी पूरी बॉडी शिवर करने लग गई है। तो मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि कोई भी डिज़ीज़ हो, कैसी भी डिज़ीज़ हो, ये चाहे कोरोना हो या कोई दूसरा हो, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। घबराने से वो डिज़ीज़ और बढ़ जाती है, दूसरी डिज़ीज़ भी हो सकती है साथ में। तो घबराना हमें बिल्कुल नहीं है। उस वक़्त से, उस दिन से मैंने घबराना छोड़ दिया। जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन क्योर भी हो जाएँगे, लेकिन घबराने से शायद मेरा डे और बढ़ जाएगा और हुआ वही। मेरी घबराहट की वज़ह से मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई और मेरी बॉडी इतनी शिवर करने लगी कि इवन 10 डेज़ तक मुझे वही शिवरिंग फ़ील होने लगा। मैं रात भर सोती नहीं, 10 डेज़ तक मुझे नींद नहीं आती है बिकॉज़ मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पूरी बॉडी में वाइब्रेट हो रही है। जैसे कि मैं ट्रेन में सो रही हूँ और ट्रेन में कैसे वो हिलते हैं, पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस और हर जगह से मुझे हार्ट बीट सुनाई दे रही है, धक, धक, धक।
सो ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन मुझे जो डॉक्टर रेणुका दीदी ने जितना मुझे अच्छे से मानसिक तौर से उन्होंने मुझे मजबूत किया, हर दिन, हर पल, मैं एवरीडे उनको 10 टू 15 टाइम्स कॉल किया करती थी। लेकिन उन्होंने कभी भी नेगलेक्ट नहीं किया। ऑलरेडी आई थिंक सब डॉक्टर्स ऐसा ही करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। मुझे रेणुका दी ने भी बहुत सपोर्ट किया और वो जो पॉजिटिव थॉट्स मेरे को दिए, उस वजह से मुझ में एनर्जी आई और उस दिन के बाद से मेरे को एटलीस्ट 25 डेज़ हो गए हैं, मैं क्वारंटाइन हूँ। हालाँकि उस टाइम पे लोगों को ऐसा हो जाता है कि इतने दिन हो गए हैं, अब तक क्यों नहीं हुई है, क्या पता क्या हो गया है? बट मैंने एक दिन भी मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं लाई। उस दिन जो चिंता हुई थी वो सिर्फ़ पेरेंट्स के लिए हुई थी, बिकॉज़ पेरेंट्स भी आज 60 इयर्स के अबोव हैं। तो आज मेरा भी करना, महेश का भी करना, घर में बाकी सबको भी हैंडल करना, दैट इज़ अ डिफिकल्ट। तो मुझे उनकी चिंता सताई जा रही थी और उस चक्कर में मैंने अपना जो है इतना वो मेरे अंदर रॉन्ग हो गया कि मैं मुझे लगता है मैं बैक चली गई वापस। और इस वजह से एक वो बहुत गरम चीज़ें खाने की वजह से और दूसरा ये रॉन्ग थॉट्स कि मेरे को इन सब चीज़ों से मुझे थोड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इसीलिए मैं सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हमें घबराना बिल्कुल नहीं है और उस दिन के बाद से मैंने अपनी बॉडी में हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू कर दिए। हालाँकि मैंने 5 दिन पहले भी वाइब्रेशन देती थी, इसी तरह से कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अभय हूँ, मेरे भीतर पूरे शरीर के अंदर एक-एक कण में रोग रोधात्मक क्षमता का विकास हो रहा है। लाइक दैट मैं स्वस्थ हूँ, मेरा पूरे शरीर का तापमान सामान्य है। लाइक दैट मैं पूरी बॉडी को ऐसे वाइब्रेट करती थी और जैसे कि हमें पता है श्री महाप्रज्ञा जी की बहुत ही सुंदर देन है, प्रेक्षा ध्यान। और मैं उसी के ज़रिए अपने आप को कायकसर के थ्रू अपनी बॉडी को शिथिल किया करती थी, अपनी बॉडी में वाइब्रेशंस दिया करती थी और उस वज़ह से मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी क्योर हो गई हूँ। 25 डेज़ ज़रूर हुए हैं मुझे, लेकिन इन 25 डेज़ में जो मेरा तापमान भी रहा है, वो नॉर्मल ही था। मॉर्निंग में जो मेरा टाइम पीरियड था वो उसमें मेरे को 100 से अंडर रहता था और रात के टाइम शाम के आफ्टर 5 ओ क्लॉक 6 ओ क्लॉक मेरा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता था। तो मैंने अभी लास्ट 5 डेज़ से मेरे काफ़ी डॉक्टर से बात हुई, गवर्नमेंट में मैंने कॉल्स किए, सबसे मैं राय लिया करती थी। काफ़ी डॉक्टर से बात हुई तो सबने मुझे यही बताया कि दैट इज़ आपका गर्मी का फ़ीवर है। बिकॉज़ रात को आप इतने 10 डेज़ 15 12 डेज़ हो गए हैं आपको रात को फ़ीवर नहीं आता है, इट मीन्स आपका ये गर्मी का फ़ीवर है। और मैंने बिफोर 5 टू 6 डेज़ बिफोर मैंने सब गरम चीज़ें बंद कर दी। मैंने हल्दी है तो सिर्फ़ 1 टाइम लिया करती हूँ। काढ़ा पीती हूँ 2 टाइम, वो भी थोड़ा क्वांटिटी कम कर दिया। और उसके बाद मैंने दिन में सिर्फ़ सुबह-शाम नॉर्मल हॉट वाटर, उसके बाद नॉर्मल वाटर। मैंने फ्रूट जूस वो सब स्टार्ट कर दिया और सब नॉर्मल वाटर से। गरम वाटर मैंने बंद कर दिया। ऑटोमैटिकली जो मेरे अंदर ओवर हीट हो गई थी, वो मेरी ऑटोमैटिकली डाउन हो रही है और अब मैं एकदम नॉर्मल हूँ। अभी मेरा टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है इवनिंग में, मॉर्निंग में और नाइट में। तो मैं सबसे यही शेयर करना चाहती हूँ कि घबराएँ नहीं सबसे पहली बात। घबराने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। दूसरी बात कि हमें अपने बॉडी को जो हमारी बॉडी को सेट हो वही चीज़ खानी चाहिए, उसके अलावा नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला ये खा लो, किसी ने बोला वो खा लो, कोरोना नहीं होगा, सब कुछ खाने से नहीं होना है। हमें वही चीज़ खानी है जो हमारे बॉडी को माफ़िक हो। उसी के हिसाब से हमें उसका सेवन करना चाहिए। तीसरी बात हम जो भी इलाज करें उसमें हमारा ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट हमें बहुत जल्दी रिलीफ देता है। और चौथी बात जो मैं भी किया करती थी योगा, प्राणायाम वो मैं कंटिन्यू मेरा चालू था, तो वो भी हमें रोज़ करना चाहिए ताकि हमारा इम्यून पावर बढ़े और जल्दी हम कोई भी चीज़ से क्योर हो सकते हैं। और चौथा है वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्रेशंस बॉडी को ऑलवेज़ पॉजिटिव वाइब्रेशन देने से ऑटोमैटिकली अपनी बीमारी जल्दी दूर हो जाती है। तो मैं सबसे यही शेयर करना चाहती थी। एक बात और कहना चाहूँगी जो मेरे डॉक्टर रेणुका जी आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उनकी बात मैं अपनी ज़ुबान से कहना चाहूँगी कि उनका कहना ये है कि एक ही दिन में इम्यून पावर नहीं बढ़ता है, कि आज मैं डबल डोज़ ले लेती हूँ तो कल तक मेरा इम्यून पावर बढ़ जाएगा या 10 दिन खा लेती हूँ तो मेरा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि हमारे बड़े-बुजुर्ग कहा करते हैं कि हमें हर चीज़ सीज़न के हिसाब से खानी चाहिए। हमें विंटर में ये सब गरम चीज़ें हल्दी है सौंठ है, अदरक है, जो भी है,
वो हमें सब विंटर में खाना चाहिए ताकि पूरे साल भर हमारा इम्यून पावर बढ़ा हुआ रहे। तो वही चीज़ है कि हमें इम्यून पावर बढ़ाना है तो हमें डेली